morning, kids. Welcome to the sixth lesson of your SP, that is Directors and Key Managerial Personnel of a Company. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी क्या होती है, उसके की मैनेजेरियल पर्सनल्स क्या होते हैं, कैसे वो कंपनी को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और जो भी सिचुएशंस अराइज होती है उन्हें वो कैसे टैकल करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं. Come on, page number 77. First, we'll talk about the introduction of, we can say, the directors and key managerial personnel of a company. As we already learned about the company as has a unique feature of separate ownership and management, whereby shareholders are its owners and directors are its manager. Yes, guys, as I told you n number of times that shareholders are called, yeah, we can say, known as the owner of the particular company. And if we talk about the managers, so they are operating, they are handling, या they are managing the overall business. अगर हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स की, शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कंपनी को, या वी कैन से, कंपनी उन्हें अपना ओनर मान लेती है. बात अगर करते हैं हम लोग कंपनी के मैनेजर्स की, कंपनी के मैनेजर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर से कलेक्ट किया हुआ पैसा उसे वी कैन से बिजनेस में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं, या उस बिजनेस को अच्छे से चलाने की या रन करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन योर शेयर होल्डर्स और कंपनी के जो भी आप मैनेजर बोल सकते हो. आगे देखते हैं. ऑल्सो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड needs a human agency to manage and control its working and day-to-day affairs. Following are the reasons which leads to separation of ownership and management in a company. It is a large business organization having vast scope of business. The second one is large number of shareholders who are scattered all over, and thereby management of a company by them it is impractical. The third one is disinterest on part of most of the shareholders to manage such a huge organization. And the fourth one is incapability in terms of qualification and inability on part of most of shareholders to manage the company. Company as an artificial person having no physical existence needs human beings to look after its functioning and day-to-day activities. In any other case, shareholders and owners would have fulfilled this duty, but we have already discussed the reason why they cannot. So, the company needs a setup structure to manage and organize its activities. Yes, guys, it will talk about the hierarchy. Yeah, we can say the working of a company. So, as I told you, in each and every company, they are collecting funds from शेयर होल्डर्स. क्लियर है. जैसे मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी होती है उस कंपनी को अगर 100% कैपिटल की ज़रूरत है, वो कंपनी 100% कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास में नहीं होता है, या वो इतना अरेंज नहीं कर पाती है. दैट्स वाई सम परसेंटेज, अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूँ तो अज्यूम करते हैं, चलिए 40% कंपनी के खुद के पैसे होते हैं, and the rest 60% company have to borrow from other persons, yeah, from general public. And when the company needs, when the company demands, yeah, when the company is collecting capital from general public, the same is called as shareholders fund, या shareholders we can say capital. Now कंपनी क्या करती है, जितने भी पैसे उसे लग रहे होते हैं, कुछ पैसे वो अपने पॉकेट से डलवाती है, कुछ पैसे वो पब्लिक से डिमांड करती है, जिन्हें हम नाम देते हैं शेयर होल्डर्स. इन शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि वो कंपनी में कुछ शेयर होल्ड करते हैं, मतलब कंपनी में उनके कुछ शेयर्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर उनका, अगर मैं बात करती हूँ अधिकार, या अगर हम बात करते हैं उनके राइट्स. अब क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में अपना पैसा दे रखा है, इसीलिए वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, या दे आर हैविंग अधिकार, या दे आर हैविंग राइट
to ask about books of accounts. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी कितना पैसा उन्हें एज अ रिटर्न देने वाली है या दे रही है। ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर्स कंपनी के वी कैन से कंपनी को आकर कभी भी पूछ सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट एज आई टोल्ड यू दैट एज दे आर इन्वेस्टिंग 60% amount of capital in particular company, yeah, in particular business, so they are eligible, yeah, they are having a right to ask anything about company. Anything means we can say about the profit and loss, about financial state, we can say status of a company. So just to we can say know the financial position of a company, profit of a company, loss of a company, how much we can say return the company is providing to its shareholder. For all these things, company has to we can say appoint a manager. Now, a manager is a person who is we can say providing all this information. All these means books of accounts, financial status, कितने assets है, कितने liabilities है, everything. For that sake, company has to appoint a manager. Now, manager is a person who handles, manages and operates the overall business situation. चलिए देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है। एक कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी में अगर 100 रुपयों की ज़रूरत है तो 40 रुपीज़ दे देती है कंपनी खुद अपने पॉकेट से। बाकी के 60 रुपीज़ या जैसे 60% बोल सकते हैं वो कंपनी कलेक्ट करती है या डिमांड करती है किससे? जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक से जो पैसा वसूला जाता है उसे नाम दिया जाता है शेयर होल्डर्स फंड। अब ये जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा देते हैं ये फ्री में नहीं देते स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं, ये जो पैसा देते हैं इसके ऊपर इन्हें कुछ ब्याज बोलिए, कुछ इंटरेस्ट बोलिए या कुछ पैसा बढ़ के कंपनी को देना होता है। कंपनी पैसा यूज़ कर रही है, इन लोगों ने कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, इसीलिए कंपनी पैसा यूज़ करने के बदले इंटरेस्ट देती है और पैसा डिपॉजिट किया है इन लोगों ने इसलिए इन्हें रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट बात अगर करते हैं इन्हीं शेयर होल्डर्स की, क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा दे रखा है या इन्हीं के पैसों पे कंपनी चल रही है। अगर आप रेशो देखो 60-40 है ना, क्योंकि इन्हीं के पैसों पे कंपनी चल रही है इसीलिए इन्हें कुछ अधिकार होते हैं बच्चों। जैसे ये कभी भी कंपनी में आके पूछ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी में कितने पैसे आते हैं, आप हमें क्या हिसाब से रिटर्न्स देते हो, या आपका क्राइटेरिया क्या है, आपके पास में एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने का अधिकार या जिसे हम राइट बोलते हैं ये इन शेयर होल्डर्स को होता है ना, क्योंकि उन्होंने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं तो ये सारी चीज़ें तो वो पूछने वाले है ही है। अब बात आ जाती है कि ये लोग तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे, अब इनके लिए कंपनी का स्टेटस, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ये सारा सब कुछ स्टोर करके कौन रखेगा या ये इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करेगा एक बंदा जिसे हम कैटेगरी में डालते हैं या जिस बंदे को हम नाम दे देते हैं मैनेजर। अब ये मैनेजर क्या करेगा, पूरे कंपनी के सारे कामों को ऑपरेट करेगा, हैंडल करेगा, फंड्स को बराबर से यूटिलाइज करेगा, है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड ऑल। और ये सब करने के बाद इन शेयर होल्डर्स को वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे आर नीडिंग या उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उन्हें वो पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करता चला जाएगा। चलिए ये तो हो गया मेरा एक जनरल डिस्कशन या वी कैन से एक इंट्रोडक्शन कि पर्टिकुलर कंपनी में कैसे काम किए जाते हैं। आइए बात करते हैं हायरार्की ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी में किस प्रकार से काम होता है या कैसे वो ऑपरेट की जाती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया, सेम इंट्रोडक्शन और हायरार्की में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे शेयर होल्डर। नाउ गाइस, शेयर होल्डर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी कंपनी। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स या वी कैन से कैपिटल। Why shareholders are providing, I'm sorry, why shareholders are playing very important role in any type of company? Just because they are providing fund, yeah, they are providing capital to particular company. Now, as I told you,
Capital, yeah, we can say fund, yeah, we can say finance is a lifeblood of a business. Without it, a company cannot function in proper way, in proper manner. शेयर होल्डर्स बहुत ही मेन या वी कैन से मुख्य भूमिका प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को पैसा देते हैं। अब पैसा एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या होता है, अगर पैसा कंपनी में ना हो या बिजनेस में ना हो तो वो बिजनेस स्मूथली या अच्छे से काम ही नहीं कर पाता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया है कि कैपिटल या फाइनेंस को लाइफ ब्लड बोलते हैं कंपनी का। जैसे ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्लड फंक्शन कर सकती है, वर्क बिल्कुल नहीं। सेम वैसे ही कैपिटल के, भांडवल के या पैसों के बिना एक कंपनी भी बिल्कुल काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ये तो हो गया शेयर होल्डर्स वाला पार्ट। बात करते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं भाई कमेटी मेंबर्स। कमेटी मेंबर्स क्या होते हैं? इन सारे लोगों से पैसा कब लेना है, इन्हें रिटर्न्स क्या हिसाब से देने हैं, क्या उनका परसेंटेज रहेगा, या बाकी की ओवरऑल जितने भी जनरल वर्क्स रहेंगे, ये सारे आ जाते हैं इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। मीटिंग्स अटेंड करना, मीटिंग्स का एजेंडा बनाना, एजेंडा मतलब जितने पॉइंट्स मीटिंग में डिस्कस करने हैं उन सभी की एक छोटी सी लिस्ट प्रिपेयर करना। चलिए, ये सारे काम हो जाते हैं मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर। Now, what is managing director, guys? Managing director is a type of director. They are managing, they are organizing, yeah, we can say they are utilizing the available resources of a company in proper way. Yeah, proper utilization of resources कौन करता है? हमारी मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के मध्य क्या काम होता है? कंपनी के पास अगर 100 रुपये है तो हाउ टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर 100 रुपीज इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर मैनर, ये काम हो जाता है मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर का, या जिसे मैं मैनेजिंग कमेटी भी बोल सकती हूँ। चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स जो आगे आपको कंपनीज में यूजुअली या वी कैन से नॉर्मली सुनने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7, total 7 are there. We'll do one thing, guys, we'll discuss all one by one. The first one is CEO. चलिए देखते हैं कि CEO होता क्या है। CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है बच्चों कंपनी का ओनर, या जो बंदा पूरी तरह से कंपनी के लिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कंपनी में जो भी चीज़ें होने वाली है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स, रेजिंग फाइनेंस, मीटिंग्स अटेंड करना, जो भी रहेगा, ये सारी चीज़ें ये बंदा बताएगा और ये लोग स्टेप बाय स्टेप उन वर्क्स को कंप्लीट करेंगे। उस बंदे को हम बोल देंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला। नेक्स्ट, CFO. CFO stands for, C stands for chief, F stands for financial, and O stands for officer. Now, chief financial officer. The next one is chief financial officer. Chief financial officer क्या करता है बच्चों? The officer is arranging funds, but of course from shareholders, from general public, and utilize the same in proper way just to achieve या just to ascertain maximum amount of profit, या कंपनी का स्टेटस, कंपनी की गुडविल मार्केट में वी कैन से बैलेंस करने के लिए ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत ही मुख्य भूमिका प्ले करता है। ये क्या करता है बच्चों? फंड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करता है, उन्हें अच्छे वी कैन से बिजनेस में किस तरह से यूज़ करना है, कैसे लोगों को रिटर्न्स देने, प्रॉफिट कमाना है, ये सारा काम इस बंदे के ऊपर डला होता है। ये हो गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट, COO. COO stands for Chief Operating Officer. Now the third one is Chief Operating Officer. Chief Executive Officer क्या करता है? The person is delegating works, या the person is we can say delegating authorities. ये बंदा सिर्फ काम दिखाता है, सबसे पहला वाला। सेकंड वाला बंदा क्या करता है? The person is arranging and managing funds, या यूटिलाइजिंग द सेम फंड्स इन प्रॉपर वे और प्रॉपर मैनर। ये बंदा फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, बात करते हैं अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की,
ये बंदा पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, मूव करता है। इट्स ओके कि फाइनेंशियल ऑफिसर ने लाके 100 रुपीज़ दिए हैं, उन 100 रुपीज़ से क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, कैसे उस पैसों को ऑपरेट करना है, कैसे सर्कुलेट करना है, ये सारा सब कुछ कर देगा हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, CLO. Now over here CLO stands for Chief Law Officer. Chief Law Officer means what? Whatever rules and regulations are there related to that particular company, ये सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? द सेम रूल्स लॉज रेगुलेशंस आर मेड बाय चीफ लॉ ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। CTO, Chief Technology Officer. Now, Chief Technology Officer means what? Whatever technologies are used in particular company, the one person is responsible for all technologies used in particular company. एक बंदा रहेगा जो पूरे टेक्निकल अफेयर्स को देखेगा, जैसे कंप्यूटर्स हो जाते हैं, टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं ऐसी चीज़ें जो इंसान नहीं करता है, जिन्हें मशीनों के द्वारा किया जाता है। But of course, as we are using machineries, yeah, as we are using techniques and technologies, but of course the same will saves your time, your energy and your money. ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या होता है? आपका वक्त, आपकी मेहनत और आपके पैसों की बचत होती है। पर इन चीज़ों में कभी कभी टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, तो एक बंदा जो रहेगा, जैसे इंटरनेट पे काम करना बहुत इजी होता है, या इंटरनेट के थ्रू हम लोग बहुत ही जल्दी से एक पर्टिकुलर काम को, जैसे कि मेल है, नेट ब्राउजिंग है, वो सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर नेट ही वर्क नहीं कर रहा है तो, है ना, नेट में कुछ एरर है, टेक्निकल एरर है, या नेट स्लो चल रहा है, उस पर्टिकुलर एरर को या उस पर्टिकुलर दिक्कत को जो बंदा सॉल्व करेगा, उसे हम कैटेगरी में डाल देंगे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सिर्फ नेट की ही एरर्स क्यों, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, एरर्स आते हैं, उन सभी फॉल्ट्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। नेक्स्ट, CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। नाउ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्या होता है बच्चों? डिमांड, चलिए, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्या होता है? नाउ, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कमिंग टुगेदर एंड ओवर देयर दे आर एक्सचेंजिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है बच्चों, जहाँ पे एक बंदा कुछ चीज़ें बेच रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है, उस जगह को हम नाम देते हैं मार्केट। अब अगर मैं बात करती हूँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये पर्टिकुलर मार्कर की प्रोडक्शन करती हूँ, या ये मार्केट में पर्टिकुलर मार्कर मैं सप्लाई करती हूँ, मैं मार्कर उतने ही बनाऊंगी जितने मार्केट में डिमांड हो। अब उसे मार्केट में कैसे निकालना है, कैसे बेचना है, जब स्कूल्स खुल जाएंगी तब मैं मार्कर ज़्यादा मार्केट में बेचने के लिए निकाल देती हूँ। जब स्लैक सीजन चल रहा है, जब वैकेशंस होते हैं, जब मैं सप्लाई को थोड़ा रोक दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई, जब मार्केट में डिमांड रहेगी तब मैं ज़्यादा मार्कर सप्लाई करूँगी, जब डिमांड नहीं होगी तब मैं मार्कर सप्लाई ही नहीं करूँगी। ये होता है बच्चों एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया। इसके ऊपर पर्टिकुलर लेसन है आपको 12th स्टैंडर्ड में, जो हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। देखते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्या होता है। फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एक ऐसा बंदा होता है बच्चों जिसको ओवरऑल नॉलेज होती है ना। द पर्सन इज हैविंग अ डिटेल्ड नॉलेज अबाउट डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन मार्केट एंड सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट, प्रोडक्ट इन मार्केट। इस बंदे को मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, कौन सी चीज़ वी कैन से ट्रेंड में है, कितनी चीज़ें सप्लाई करनी है, कैसे करनी है, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। द लास्ट वन इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो मैंने बताया हुआ है कि कंपनी में एक सेक्रेटरी होता है। चलिए इस पर्टिकुलर वर्ड को स्प्लिट करते हैं। सेक्रेटरी, चलिए अगर मैं ये मैंने वर्ड लिखा है सेक्रेटरी, इसके आगे के अगर मैं ये 3 वर्ड्स को गुम कर देती हूँ, ये बन जाता है बच्चों आपका, है ना,
अगर मैं ए और वाई को डिलीट करती हूँ या रिमूव करती हूँ, मेरे पास में बच जाता है सीक्रेट। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है बच्चों? कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के सारे सीक्रेट्स अपने तक रखता है, उसके अंदर एडिशंस करके वी कैन से कंपनी की कैसी ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, इन चीज़ों के ऊपर ये बंदा फोकस करता है। चलिए, ये सब कुछ थे मेरे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम आगे सीखने वाले हैं ऑफ विच लेसन, योर सिक्स्थ लेसन, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।